Good morning to everyone. In previous lecture, we seen about the classification of rational and irrational number. Also, we can find the value of irrational numbers. So, in this lecture, we show that the irrational number on number line. Okay. So, what is the procedure or how to show the irrational number on the number line? Okay. So, we know that we can directly show natural whole number or rational number on number line, like that this is 0, 1, 2, 3 up to dash, that is on number line. But how to show root number on number line? Okay, so let's see the step by step procedure. So first one, to show the root 2 on number line. Okay, so first one, we can take 0 to 1 distance. Consider that distance be the 1 unit. This is our 1 unit distance. 1 unit distance. Okay, so next one, to draw right angle, our first consider this is O point, this is our O point, and this is our A point. Okay, then draw right angle triangle. By using compass we can draw right angle triangle, or by using protractor also. First we can draw by using compass. Yes, how to draw? Yes, we know that procedure. First draw semicircle from A point. Here we can draw semicircle from A point. From A point. Adjust this one compass. Semicircle from A point. Okay, take same distance from the end of the semicircle point. Draw one arc, same as it is distance. Again draw one arc here. Here one arc. Okay. Next, by using this same as it is distance, draw here one arc. Then again in this point, on this point, draw next arc. So we get point of intersection here and join this point. Yes, this is our right angle triangle. Consider this is our right angle triangle. Okay, then take 1 unit distance from A to new point. Yes, first we can take 1 unit distance by using compass. Okay, draw arc here. Okay, then join this point. Okay, so we get this is 90 degree. So we know that Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem directly we can show that root 2 on a number line. Okay, so we know that Pythagoras theorem, yes, this is for root 2. This is the verification for root 2. Okay, means this is our root 2 numbers. Okay, so here we can take 1 unit distance. This is 1 unit distance. Okay, so by using Pythagoras theorem we can prove that this is our root 2 distance. Okay, so this is right angle triangle. We can take new point. This is B. So by using right angle triangle theorem, means Pythagoras theorem, in triangle OAB, A is a right angle. So directly we can use Pythagoras theorem. We know that Pythagoras theorem, that is why hypotenuse square is equal to first side square plus second side square. So what is hypotenuse here? OB is a hypotenuse. So here OB square is equal to OA square plus AB square Okay, so OB square is equal to, then OA square, distance between OA point, that is 1 unit, then distance of AB point, that is 1 unit. So we can put here value 1 square plus 1 square. Okay, so OB square is equal to 1 square 1, 1 square 1, 1 plus 1 2. Okay,
then taking square root on both sides, so we get here OB is equal to square root 2. Means value of OB here root 2, value of OB here root 2. Okay, so इस तरह से आपको क्या मिलेगा, रूट 2 वैल्यू मिलेगा. ओके, बट ये नंबर लाइन पे शो किया है क्या, नहीं. सो हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन पे शो करना है. सो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, बाय यूजिंग कंपास, सेम एज इट इज. O is the center and B is the next point. B is the next point. Okay, and then mark arc on the number line. Okay, so इस तरह से ये जो पॉइंट मिल रहा है ये क्या रहेगा हमारा, रूट 2 वैल्यू रहेगा. क्या रहेगा, रूट 2. ओके, ये जो डिस्टेंस लिया ये क्या है, रूट 2. बट नंबर लाइन पे शो करना है तो हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करना है. ओके, सो इस तरह से हमारा ये रूट 2 वैल्यू मिलेगा. ओके, सो सिमिलरली हमें क्या करना है, रूट 3 वैल्यू निकालना है. सो शॉर्टकट मेथड से हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, रूट 2 है. ओके, इसके लिए हम एक न्यू पॉइंट मेंशन करेंगे. ये पॉइंट कंसीडर करेंगे हम C. दिस इज अवर C पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फॉर रूट 3, फॉर रूट 3. ओके, रूट 3 के लिए फर्स्ट हमें डिस्टेंस मिल रहा है OC. OC का वैल्यू कितना है, रूट 2 है. OC का वैल्यू रूट 2. आगे हम सेम प्रोसीजर करना है, 90 डिग्री एंगल निकालना है. तो हम इस बार क्या करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे. उस हिसाब से हम 90 डिग्री एंगल निकाल सकते हैं, या कंपास से भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, सो यहां से हम 90 डिग्री एंगल निकालेंगे, मार्क करेंगे. यहाँ पे टच हो रहा है. देन हमें 1 यूनिट डिस्टेंस भी लेना है. पहले ये ज्वाइन करेंगे. इस तरह से ये ज्वाइन करेंगे. ओके, देन 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है. सो 1 यूनिट डिस्टेंस, ये OA हमारा क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस है. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक आर्क निकालेंगे. ठीक है, देन ज्वाइन अगेन न्यू पॉइंट एंड O, न्यू पॉइंट एंड O. इस तरह से ज्वाइन करेंगे. ठीक है, और न्यू पॉइंट के लिए हम नेम देंगे D. दिस इज अवर D पॉइंट. ओके, एंड वी नो दैट दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल. मींस सेम वी गेट हियर right angle triangle. Again we can use here Pythagoras theorem, and we know that this one with the distance CD is equal to 1 unit distance. CD is equal to 1 unit distance, means here we can write CD is equal to 1. CD is equal to 1. Okay, so by using Pythagoras theorem here for triangle OCD, for triangle OCD, C is a right angle triangle. So we know that Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to first side square plus second side square. So what is hypotenuse here? That is OD square is equal to OC square plus CD square. CD square. Okay. Then OD square is equal to OC का value, yes, OC का value root 2. So root 2 square. Then plus CD का value, CD here 1 unit, that is 1 square. Then OD square is equal to, yes, square root square get cancel, means we get here 2 and 1 square 1, so 2 plus 1. So OD square is equal to, we get 3. Then taking square root on both sides, so we get here OD is equal to root 3. So means value of OD here root 3. तो ये जो अपना वैल्यू मिला है ये क्या है, root 3. Okay, but show on the number line. How to show on number line? By using compass, by using compass. Okay, so compass use करके हम क्या करेंगे, show करेंगे. So compass use करेंगे, इस तरह से डिस्टेंस लेंगे OD का, O पॉइंट से एग्जैक्टली, यस. सो यहां से हम आर्क निकालेंगे, ये आर्क. ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये क्या है अपना, रूट 3 वैल्यू. दिस इज अवर रूट 3 वैल्यू ऑन नंबर लाइन. ओके, सो नेक्स्ट अगेन शो दैट रूट 4 इज नॉट इरेशनल नंबर. ओके,
√4 इज ए नॉट इरेशनल नंबर, बट सिंपली एग्जांपल इसलिए लिया है कि √4 का वैल्यू क्या है, 2 है। √4 का वैल्यू क्या आता है, 2। तो आपका जो ये कर्व आने वाला है या ये आपका आर्क है, या ये कहाँ पे टच होना चाहिए, 2 पे टच होना चाहिए। तो हम सिंपली ये वेरीफाई करेंगे। ओके, सेम प्रोसीजर यूज करके हम वो वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सेम प्रोसीजर, अगेन ड्रॉ 90 डिग्री एंगल हियर, angle, then draw line, this is our 90 degree angle. Okay, then join OA point. First to take 1 unit distance, that is OA. Okay, then join this new point and O. Okay, so consider this is E point, this is F point, this is F point. Okay, then we know that here distance, the value from O to E, that is √3. So directly we can prove, write here proof. Here we can write proof for √4, for √4. Okay, so value of OE is equal to here √3. Then this one EF distance, similarly 1 unit. So EF is equal to 1. Okay, same like that by using Pythagoras theorem, because OEF is a right angle triangle. So here hypotenuse is OF, means directly we can write here, that is OF square is equal to, then OE square plus EF square. Okay, so first OF square as it is, then OE square, value of OE square here, that is √3. So √3 bracket square plus EF value 1, that is 1 square. Then final OF square as it is, square root square get cancel, means this square root square get cancel. We know how to cancel this square root. Yes, the value of root, that is raised to 1/2, and this is 2. Yes, how to cancel, square root a square कैसे कैंसिल करते हैं, स्क्वायर रूट का आंसर क्या रहता है, वैल्यू क्या रहता है, दैट इज a raised to 1/2 raised to 2. Okay, so this 2 get cancel, so we get final a. So similarly square root square get cancel, so we get here 3 plus 1. So OF square is equal to 4. Then taking square root on both sides, so OF is equal to, that is √4. Okay, and √4 value 2. Okay, so exactly आपका आर्क कहाँ पे आना है, 2 पे आना है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, OF डिस्टेंस लेंगे, सेम OF डिस्टेंस, ठीक है, यहां से हम आर्क निकालेंगे। एग्जैक्टली यस, यहां से हम आर्क निकालेंगे, वो 2 पे टच होना है। ओके, तो इस तरह से ये कहां से जा रहा है, पॉइंट 2 से जा रहा है, मींस दिस इज अवर √4 वैल्यू, दिस इज अवर √4 वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर और रूट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और विथ प्रूफ हम पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं। ओके, so this is the procedure for to represent the root number on number line. Okay, and main important point, we can take here any scale, means we can take here 5 centimeter is equal to 1 unit, या 2 meter is equal to 1 unit. Okay, means कुछ भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं, बट उसके लिए हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, मीन्स सेंटीमीटर हो, मीटर हो या किलोमीटर हो, वो क्या है, हमारा यूनिट है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया था। तो
तो आप 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, जैसे हमें क्या करना है वो मेंशन करना है। ओके, सो दिस इज दी आवर फाइनल प्रोसेस टू रिप्रेजेंट रूट नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, next question, there is question number 10, represent root 8.4 on number line। okay, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था रूट 2 मीन्स डेसिमल नंबर नहीं है, तो रूट नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, बट डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंटेड वैल्यू है, तो हम रूट नंबर नंबर लाइन पे कैसे शो करना। ओके, तो हम विथ प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट, ये आपके सामने नंबर लाइन दिख रहा है, सो एओ डिस्टेंस हमने 8.4 लिया है, 8.4 सेंटीमीटर लिया है। ओके, मेंशन भी कर सकते हैं 8.4 सेंटीमीटर, दिस इज 8.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर। ओके, सो एओ डिस्टेंस हमारा 8.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। देन हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है और 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, और ये पॉइंट के लिए हम मार्क करेंगे, दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट बी। ओके, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मार्क हो गया। ओके, 1 यूनिट डिस्टेंस या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमारा एक्सटेंड हो गया। तो हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ए टू बी पॉइंट। ओके, तो जैसे कि आपको पता है सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें क्या चाहिए, उसका मिडल पॉइंट चाहिए, ए बी का मिडल पॉइंट। तो ए बी का मिडल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, सो फर्स्ट बाइसेक्ट दिस लाइन ए बी, take distance more than half distance from B point, mark, draw here one arc, here same as it is one arc. Okay, similarly same distance from A point, mark arc, so we get here point of intersection between these two arcs. Okay, then join this line, okay, so we get this is our middle point of AB। okay, and then draw semicircle, take distance A from A or B। okay, so this is distance, कहाँ पे टच होना है, ये B पे एग्जैक्टली टच होना है। इस तरह से हमारा सेमी सर्कल आ गया। ओके, ये सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे हम एक लेबल दे सकते हैं, दिस इज अवर सी पॉइंट, दिस इज अवर सेंटर पॉइंट, दैट इज सी पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसीजर, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ओ टू सेमी सर्कल। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है मीन्स यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए। आप यहाँ पे सेमी सर्कल निकाल के, सेम एज इट इज सेमी सर्कल निकाल के भी 90 डिग्री निकाल सकते हैं, या हम प्रोटेक्टर यूज करके भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हम कंपास यूज करेंगे इसके लिए। यस, फर्स्ट वन हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरह से हम सेमी सर्कल ड्रॉ किए। ओके, देन नेक्स्ट सेम डिस्टेंस है, हम यहाँ से एक आर्क निकालेंगे, यहाँ से और एक आर्क निकालेंगे। ये दोनों आर्क का यूज करके हम सिमिलरली 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर लाइन के लिए आर्क ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट से भी हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो ये हमारा क्या रहेगा, 90 डिग्री। लेकिन ये कहाँ तक एक्सटेंड करना है, जब तक ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता है। यहाँ से लाइन निकालेंगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ये पॉइंट हम डी बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारा क्या है, रूट 8.4। ओके, तो ये रूट 8.4 है, तो हमें ये क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है। ओके, दिस इज 90 डिग्री, नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। टेक डिस्टेंस ओडी, यहाँ से ओडी डिस्टेंस लेंगे। ओके, इस तरह से हम ओडी डिस्टेंस लेंगे, और ये 3 के पहले टच हो रहा है। जैसे कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता रहेगा, रूट 9 का अप्रोक्सीमेट रूट 9 का वैल्यू क्या है, 3 है। सो 9 से कम नंबर रहेगा तो वो 3 से आगे आएगा, तो ये 3 से आगे आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या है अपना 8.4 है। ठीक है,
ये वैल्यू 8.4 है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वैल्यू 8.4 है, लेकिन कैसे है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ओडी वैल्यू ही √8.4 है या ये डिस्टेंस क्या है, √8.4 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे CD, ये पॉइंट यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज योर पाइथागोरस थ्योरम हियर। O is a 90 डिग्री एंगल। ओके, सो फर्स्ट हमें वैल्यू निकालना है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपना, यस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर। फर्स्ट वन, हमें CD का वैल्यू चाहिए, OD का वैल्यू चाहिए और CO का वैल्यू चाहिए। मींस OD का तो हमें निकालना है। सो कंसीडर दिस इज अवर x वैल्यू, दिस इज अवर x वैल्यू। CD का वैल्यू चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं CD क्या है, ये सेमी सर्कल का रेडियस है। CD क्या है, सेमी सर्कल का रेडियस। मींस हियर वी कैन से दैट CD इज इक्वल टू CB, CD इज इक्वल टू CB, यस ना, बिकॉज CB एंड CD आर रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। ओके, तो डायरेक्टली हम CB का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, CD बोल सकते हैं। तो CD का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम, हियर CD इज इक्वल टू, CD क्या है या CB क्या है, हाफ ऑफ दी AB, AB से हाफ है। और AB का वैल्यू क्या है, फर्स्ट AB इज इक्वल टू, AB का वैल्यू 8.4 प्लस 1 एक्सटेंडेड, दैट इज 9.4। कितना है ये, 9.4। तो CD क्या है, उससे हाफ है, और 9.4 का हाफ करना है तो क्या मिलेगा आपको, 4.7। क्या मिलेगा, 4.7। इस तरह से आपको CD मिलेगा। तो CD क्या है, वैल्यू आपका 4.7 है। नेक्स्ट आपको निकालना है CO निकालना है। CO कैसे निकालेंगे, यस, CO इज इक्वल टू CB माइनस OB, CB माइनस OB। सो CO का वैल्यू कैसे निकालेंगे, CO इज इक्वल टू CB माइनस OB। तो हमें क्या मिलेगा, CO मिलेगा। तो CO निकालना है तो हमें OB का डिस्टेंस पता है 1, CB का डिस्टेंस भी पता है, जैसे कि हाफ आपने यहाँ पे निकाला था। CB एंड CD क्या है, हियर वी कैन राइट CB इज इक्वल टू CD 4.7 सेंटीमीटर। सो हम लिख सकते हैं CO इज इक्वल टू, CB क्या है 4.7 माइनस 1, तो क्या मिलेगा 3.7 सेंटीमीटर। CO का वैल्यू क्या मिलेगा, 3.7 सेंटीमीटर। देन CD का वैल्यू मिला, देन CO का मिला, देन हमें क्या निकालना है, OD का, मींस वैल्यू ऑफ x निकालना है। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर, यस, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? सो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हियर CD, so CD square, first here OD is x, here OD is x सेंटीमीटर, ठीक है, या OD is x, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखे तो भी चल सकता है। ओके, सो OD इज इक्वल टू x, सो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OD स्क्वायर एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे। CD का वैल्यू क्या मिला है हमें यहाँ पे, दिस इज CD वैल्यू, दैट इज 4.7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, देन CO का वैल्यू, CO का वैल्यू क्या मिला है आपको, यस 3.7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस OD क्या है, x कंसीडर किया, सो दैट इज x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर। ओके, देन ट्रांसफर दिस वन, सो वी गेट फाइनल x स्क्वायर, ये ट्रांसफर किए तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। सो 4.7 स्क्वायर माइनस 3.7 स्क्वायर। ओके, सो सिंपल रूल अप्लाई करेंगे इसके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, सो दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यस वी नो दैट रूल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, या डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर 4.7 minus 3.7 means a minus b in second bracket 4.7 plus 3.7. Okay, so x square is equal to subtraction of this one, 4.7 minus 3.7, that is 1. Next bracket, then 7 plus 7 14, carry 1, 4 plus 4 8 means 8.4.
Okay, 1 into 8.4, that is x square is equal to 8.4. Okay, then taking square root on both sides, so x is equal to root 8.4. Root 8.4 means this is the value of x. And what is x here? X is OD. So OD is equal to root 8.4. Root 8.4 means this one be the distance, root 8.4. So this is our final answer. So we can mention decimal value on a number line, root decimal value on a number line. This is the procedure. Okay, thank you.